منایا جاتا ہے۔ اس دن کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ اسی دن کی اہمیت اور اس کی افادیت ہم آج اپنے کچھ ساتھی طلبہ کے زبانی سنیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے آج کی اس محفل کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا چاہوں گا، جس کے لیے میں دہم الف کے طالب علم انصاری ابو سعد حبیب الرحمان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم۔ قرآن مجید کی آیات سے آج کی اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ آیات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان آیات میں اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کی جو برتری ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس میں کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے۔ آئیے آج کی اس دن کی اہمیت پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں سب سے پہلے انصاری حذیفہ مخصوص دہم الف کے طالب علم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مضمون پڑھ کر سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 دسمبر یعنی عقیدتوں کے علوم کے دن کے حوالے سے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ہمارے ملک کے آئین میں عقیدتوں کو دیے گئے حقوق کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ میں جس موضوع کے تحت آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بھارت کے دستور میں مائنرٹیز کے حقوق۔ بھارتی آئین کے مطابق مذہب، نسل، ذات یا پیدائشی جگہ کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت ہے۔ آرٹیکل 15 کے تحت ریاست کسی بھی شہری کے ساتھ صرف مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 16 کے تحت مائنرٹیز کے ساتھ سرکاری ملازمتیں دینے کے معاملے میں کسی بھی قسم کا امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 25 میں مائنرٹیز کو مذہب اور عقیدے پر عمل کرنے کی آزادی کا تحفظ دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 27 کسی خاص مذہب کے فروغ کے لیے ٹیکسوں کی ادائیگی سے آزادی دیتا ہے۔ کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کا ٹیکس ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سے خاص طور پر کسی خاص مذہب یا مذہبی فرقے کے فروغ یا دیکھ بھال کے لیے اخراجات کی ادائیگی میں خصوصی طور پر رعایت دی گئی ہے۔ آرٹیکل 28 سرکاری فنڈ سے چلنے والے تعلیمی اداروں کو مذہبی ہدایت فراہم کرنے سے منع کرتا ہے، الا یہ کہ اس طرح کی مذہبی تعلیم دینے کے بارے میں یہ ادارہ مخصوص طرز پر قائم کیا گیا ہو، اوقاف یا ٹرسٹ کی شرائط میں کوئی شرط نہ ہو۔ اس سے کسی بھی تعلیمی ادارے میں آنے والے فرد کو یہ حق بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے کسی بھی مذہبی تعلیم میں حصہ نہ لے۔
आइन का आर्टिकल 29 शहरियों को अपनी जबान, रस्म और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का हक फराहम करता है और इसकी जमानत देता है कि उनको अपनी नस्ल, जबान, मजहब, ज़ात के मुताबिक किसी भी तालीमी इदारे में दाखिले से इनकार नहीं किया जाएगा और चाहे वो अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखता हो या नहीं। आर्टिकल 30 अक़लियतों को तालीमी इदारे को क़याम और उनका इंतज़ाम करने का हक फराहम करता है और ऐसे इदारों को इमदाद फराहम करने के मामला में रियासत को किसी भी तरह की इम्तियाज़ी सलूक से रोकता है, लेकिन इन तालीमी इदारों को रियासत या हुकूमत के जरिए बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। शुक्रिया। आज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज 18 दिसंबर यानी अक़लियत और हुकूक के दिन के हवाले से हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि हमारे मुल्क के आइन में अक़लियतों को दिए गए हुकूक के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। मैं जिस मौजू के तहत गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है अक़लियतों के लिए स्कीम्स और इमदाद। हुकूमत के जरिए अक़लियती तबके को मुख्तलिफ तरह की स्कीम और इमदाद दी जाती है जिससे अक़लियती बिरादरी को वाकिफ होना जरूरी है, जिनमें से चंद इस तरह है जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम माली आनत की शक्ल में फराहम की जाती है, मुफ्त कोचिंग और अलाइड स्कीम। इस स्कीम का मकसद तकनीकी पेशा वाराना कोर्सेज और मसाक़ती इम्तिहानात के जरिए दाखिला इम्तिहानात में क्वालिफाई करने के लिए अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग फराहम करना है। पढ़ो परदेस स्कीम अक़लियती बिरादरी के तलबा को बैरून मुल्क आला तालीम के लिए तालीमी कर्जों पर सूद सब्सिडी की स्कीम फराहम की जाती है। नई उड़ान स्कीम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन PSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC वगैरह में कामयाबी के लिए मदद की जाती है। नई रोशनी स्कीम अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन की लीडरशिप का प्रोग्राम। सीखो और कमाओ स्कीम 14 से 35 साल की उम्र के नौजवानों के महारत और रोजगार के काबिल बनाना और तरक्की के मौके फराहम करना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PM जन विकास कार्यक्रम PMGVK स्कीम मई 2018 में इसकी तश्कील की गई थी, जिसको पहले MSGP कहा जाता था। तालीम, हुनर और सेहत के शोबों में असासों की तश्कील के लिए अक़लियती इलाकों में माशरे के तमाम तबक़ात के लोगों के फायदे के लिए इस पर अमल दरामद किया गया। जियो पारसी स्कीम भारत में पारसियों की आबादी में कमी पर मुश्तमिल स्कीम है। उस्ताद स्कीम तरबियत बनाए हुनरमंदी रिवायती आर्ट्स क्राफ्ट फराहम करने के लिए है। नई मंजिल स्कीम स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए बाज़ाब्ता तालीम और हुनर के लिए। ये स्कीम अगस्त 2015 में शुरू की गई है। हमारी धरोहर भारतीय सकाफत के मजबूत तस्वुर के तहत भारत की अक़लियती बिरादरियों के भरपूर विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक स्कीम जो 2014-15 से लागू है। भारत का दस्तूर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मुल्क में अक़लियती इदारे मौजूद हैं, इनकी हुकूमत के जरिए निगरानी और रहनुमाई भी हो रही है। शुक्रिया। खुदा। अंसारे मुसाद हबीबुर रहमान हुकूमत हिंद की तरफ से मुल्क में पाई जाने वाली मुख्तलिफ अक़लियतों और बिरादरियों को ऊपर लाने, उनको तरक्की के मौके फराहम करने, उनको मेन स्ट्रीम में धारे में लाने के लिए जो हुकूमत जो कोशिशें कर रही है, जो मुख्तलिफ स्कीमात और दीगर जो फंड मुख्तस कर रही है, उसके हवाले से रोशनी डाल रहे थे अंसारी मुसाद हबीबुर रहमान। अब इसके बाद अगला मजमून पढ़ने के लिए मैं अलिफ के भी तालिब इल्म मोमिन अब्दुल रहमान नौमान को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपनी गुफ्तगू फरमाएं। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 18 दिसंबर यानी अक़लियतों के हुकूक के दिन के हवाले से हम तमाम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारे मुल्क के आइन में अक़लियतों को दिए गए हुकूक के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। मैं जिस मौजू के तहत आज अपनी गुफ्तगू करना चाहता हूँ उसका उन्वान है 18 दिसंबर यानी अक़लियतों के हुकूक का दिन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक तारुफ।
भारत में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर बरस 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है। आज के दिन अक़लियतों की ज़रूरियात, मसाइल, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के मुताल्लिक़ अमूर को पेश किया जाता है। भारत के दस्तूर में सब शहरियों को मुसावी हक दिया गया है। इसमें लोगों के मजहब, ज़बान और कल्चर को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1992 के तहत कौमी कमीशन बराए अक़लियत NCN कायम किया। भारत के गेज़ेट में 6 मजहबी तबकात मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्धमत, जरदश्त यानी पारसी और जैन को माइनॉरिटीज के तौर पर नोटिफाई किया गया। NCN ने अक़वाम मुत्तहिदा के 18 दिसंबर 1992 के ऐलानिया की पासदारी की, जिसमें कहा गया है कि रियासतें अपने अपने इलाकों में अक़लियतों की कौमी या नस्ली, सकाफती, मजहबी और लिसानी शनाख्त के वजूद की हिफाजत करेंगी और इस शनाख्त के फरोग़ के लिए शराइत की हौसला अफजाई करेंगी। भारत का दस्तूर अक़लियतों के हुकूक कमीशन में मंदरजा झेल काम है। नंबर 1, यूनियन और रियासतों के तहत अक़लियतों की तरक्की की पेश रफ्त का तज्ज़िया करना। नंबर 2, आइन में दर्ज दफ़आत पार्लियामान और रियासती कानून साजों के जरिए नाफिज करदा कवानीन की निगरानी करना। नंबर 3, मरकज़ी या रियासती हुकूमत के जरिए अक़लियतों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात के मौसर नफाज के लिए सिफारिशात पेश करना। नंबर 4, अक़लियतों के हुकूक और इनके तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ मक़सूद शिकायत पर गौर करना और इस तरह के मामलात मुनासिब हकाम के पास पहुँचाना। नंबर 5, अक़लियतों के खिलाफ किसी भी इम्तियाजी सुलूक की वजह से पैदा होने वाली दुश्वारियों का मुताला करना और इनके खात्मे के लिए इक़दामात की तजावीज़ देना। नंबर 6, अक़लियतों के समाज मुआशी और तालीमी तरक्की से मुताल्लिक़ अमूर पर मुताला, तहक़ीक़ और तज्ज़िया की मीटिंग्स मुनक़्क़िद करना। नंबर 7, मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमत के जरिए किए जाने वाले किसी भी अक़लियत के सिलसिले में मुनासिबत इक़दामात की तजवीज़ देना। नंबर 8, अक़लियतों से मुताल्लिक़ किसी भी मामले और ख़ास तौर पर इनको दरपेश मुश्किलात से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत को वक्तन खुसूसी रिपोर्ट्स फराहम करना। मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती हक़ूक़ का क़याम वज़ारत अक़लियती अमूर हुकूमत हिंद की एक वज़ारत है, जिसे 29 जनवरी 2006 को तश्कील दिया गया। भारत जिसमें मुसलमान, ईसाई, बुद्धमत, जरदश्त यानी पारसी और जैन शामिल हैं, इन तमाम को भारत के गेज़ेट में अक़लियती बरादरी के तौर पर दर्ज किया गया है। शुक्रिया। खुदा इनके ताल्लुक से 2006 में बाकायदा एक वज़ारत अक़लियती उमूर एक पूरी वज़ारत ही कायम की थी। उसके बाद अक़लियतों के हुकूक के ताल्लुक से 1992 में कमीशन एक अक़लियतों का कमीशन कायम किया गया था। इसके ताल्लुक से मोमिन अब्दुर्रहमान नोमान गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब आइए हम कलीली खुतबे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आवाज़ दूंगा हमारे स्कूल के सरबराह आली जनाब मोहम्मद शब्बीर फारूकी साहब को की दुआएं और आज के दिन के अहमियत और उसकी अफादियत से रोशनी डालें। भारत में उनके दस्तूर को हम मानते हैं, जो कानून है उसको मानते हैं और उसी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ये जो दस्तूर है, ये दस्तूर हिंद, इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा अपने शहरियत पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट खासतौर से 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत तफसील के साथ पढ़ाया जाता है। उसमें पढ़ा भी होगा कि हमारे दस्तूर में हमको क्या क्या मुराद दी हैं, क्या क्या सहूलियात दी हैं, कौन कौन से हुकूम जो है वो हमको उन्होंने फराहम इस दस्तूर ने किए। तो अब चूँकि हम यहाँ पर एक अल्पसंख्यक हक दिवस, जैसे आज का दिन है अल्पसंख्यक हक दिवस, यानी यौम अक़लियत की हुकूक। अक़लियत क्या है? किसी मुल्क में मजहब या ज़बान के एतबार से, ज़बान बोलने वालों के या मजहब के मानने वालों के एतबार से जिनकी तादाद कम हो दूसरों के मुकाबले, वो अक़लियत। अब यहाँ पर जैसे 5 अक़लियतों का तलबा ने जिक्र किया है खासतौर से। कौन सी 5 अक़लियतें हैं? सबसे बड़ी अक़लियत, सबसे बड़ी माइनॉरिटी वो है हम लोग यानी मुस्लिम। उसके बाद में दूसरे सिख, ये उसके बाद में है जैन, उसके बाद में है पारसी, ये जो और बुद्धमत 2 नंबर पे।
ये 5 जो है अक़लियतें हुकूमत हिंद ने डिक्लेयर की कि ये मजहब के एतबार से कम है दूसरे यानी हिंदू मजहब के मुकाबले में, दीगर जो है मजहब के मानने वालों के मुकाबले में, इसलिए इनको अक़लियत का दर्जा दिया जाए, उनको अक़लियत कहा जाए। अब हर पूरे दुनिया के तमाम ममालिक में अक़लियतों के कुछ हुकूक होते हैं, वो उन हुकूक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसा नहीं है कि कम है तो कोई उसको करे, कोई उनके साथ फर्क करे, कोई डिफरेंस बरते या कोई जुल्म का रवैया रवा रखे। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे दस्तूर ने हमको सिखाई है। उसको खासतौर से 18 दिसंबर को इसलिए एक दिन उनके नाम पर हुकूमत ने रखा है कि आज उन्हीं के नाम से मनाया जाए, और वो हम लोगों का दिन इसलिए खासतौर पे। अब आप लोगों को यहाँ पर ये मालूमात क्यों दी जा रही है, क्योंकि आप लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए कि आप लोग यानी हम तमाम माइनॉरिटीज में आते हैं, अक़लियत में आते हैं इस मुल्क में। हमारे जो हुकूक हैं उसको समझना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, साथ ही साथ दीगर मज़ाहिब के लोगों के बारे में यानी जो माइनॉरिटीज हैं उनके जज्बात का एहतराम करते हुए, और वो भी हमारे जज्बात का एहतराम करते हुए चले। ये तमाम चीज़ें हमको इन हुकूक के ज़रिए जो दफ़ात हैं दस्तूर की, उनके ज़रिए बताने की कोशिश की गई है। और जैसे आर्टिकल 25 से शुरू होता है ये मामला, 26 से 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक चलेगा। इसमें ये दस्तूर के इन दफ़ात में खासतौर से माइनॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया है कि माइनॉरिटीज़ है क्या, वो कैसे रहेंगे मुल्क में। तो आपको अपने हक समझना चाहिए। बहुत सारे तलबा 10वीं के बाद, 12वीं के बाद या उससे पहले तो कुछ किसी को समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको मालूमात उनके टीचर देते हैं, टीवी वो याद रखते हैं। लेकिन कम से कम 12वीं जमात के बाद या ग्रेजुएशन करते हुए या बहसियत एक शहरी नहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको अपने हुकूक का पता होना चाहिए कि हमारे हक क्या हैं इस मुल्क में बहसियत शहरी के, कौन से हुकूक हमारे को हमारे दस्तूर ने दिए हैं हमको। इन चीज़ों से हमको जो है आगाह रहना चाहिए ताकि हम उसका वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकें, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, क्योंकि हुकूमत ने और हमारे दस्तूर ने हमको फराहम किए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप और ज़्यादा मालूमात दस्तूर के ताल्लुक से लेंगे। ये ऐसा काम नहीं है कि पुलिस दस्तूर याद करके बैठे, वकील लोग दस्तूर याद करके बैठे या कुछ पढ़े लिखे लोग दस्तूर याद करके बैठे, बल्कि दस्तूर के हक के बारे में अपने जहाँ रिलेशन आता है, अपना ताल्लुक आता है, तो उसको खासतौर से जानकर हमने अपने आप को मजबूत करना चाहिए, ताकि यहाँ पर कोई नाइंसाफी हो रही हो या जहाँ पर कोई हमतलफी हो रही हो या जहाँ पर कोई मामला की कमी हो रही हो अक़लियतों के ताल्लुक से, हम उसको दिलाने की कोशिश करें या उसको आगाह कर सकें। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सही मालूमात लेंगे। हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं चीज़ों को बराबर बताया जाता है। जैसे मैंने सब्जेक्ट तारीख के साथ में पॉलिटिकल साइंस का जिक्र किया है, ये सब्जेक्ट बाकायदा आपको इसीलिए रखा गया कि आपको दस्तूर की दफ़ात की तफसीली मालूमात हो और आप अपनी ज़िंदगी में उनको इम्प्लीमेंट करने के काबिल बन सकें। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे तरीके से ये एक दिन का मामला नहीं रहेगा, बल्कि दस्तूर के अहम मालूमात आप रोज़ाना सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी तालीमी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और हमारी इंफरादी ज़िंदगी या समाजी ज़िंदगी के लिए भी बेहद ज़रूरी है। मैं इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए जो मुख्तसर ही सही लेकिन बामकसद तरीके से और तलबा के जरिए पेश किया गया, मैं इसके लिए ज़फ़र आलम सर को और नकीब हुए सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन दोनों ने इस प्रोग्राम को मुख्तसरन ही सही लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में आज मुनक़िद करने की कोशिश की है। मैं तलबा से भी उम्मीद रखूँगा कि वो सही मालूमात लेकर अपने आप को अपडेट करते रहेंगे दस्तूर के बारे में, तो अच्छे मकसद बनाए ज़िंदगी में, ताकि अपने आप को मुस्तक़बिल में बेहतर ज़िंदगी हमारी गुजरे, हमारे फैमिली की तरक्की हो, हमारे समाज की, हमारे माशरे की तरक्की हो और इन सब के बुनियाद पर हमारे मुल्क की तरक्की हो। क्योंकि तालीम याफ्ता लोग जो है वो समाज को, मुल्क को बदल सकते हैं, वो ताकत तालीम के जरिए मिलती है। और अच्छी तालीम का मकसद क्या है कि आप अपने आप को भी बदलें, अपने समाज को भी बदलें। तो इसलिए अच्छी तालीम हासिल करने का ख्वाब देखें, उसके लिए कोशिश करें कि मैं फला क्वालिफिकेशन हासिल करूँगा। जैसे आज के दिन की मुनासिबत से मैंने ये पूछा है कि कितने लोग वकील बनना चाहते हैं। हमारी कौम में लड़कियाँ जज बन रही हैं,
बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो रही है, और लड़के जो है वो गाड़ियाँ खींच रहे हैं, उन्हीं लड़कियों को जो है रिक्शा में बिठा के और उनके दफ्तरों में छोड़ रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। हम नुक्कड़ों पर पाए जाते हैं, चौराहों पर पाए जाते हैं, लेकिन को वेस्ट मत करो। यहाँ पर आए हो तो पढ़ाई का सही इस्तेमाल करो और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तालीम का ख्वाब लेकर बैठे होंगे। भले ही किसी ने नहीं बताया, लेकिन उम्मीद करूँगा कि मुस्तक़बिल में आप अच्छी तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, और तालीम मुनक़ता नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे तलबा कानून की पढ़ाई के लिए भी जाएंगे, ताकि अपने आप को, अपने समाज को अच्छी चीज़ से जो है जुड़े और उससे जो है लेस करें, अच्छी मालूमात से, मुल्क की तरक्की के और मुल्क के दस्तूर की मालूमात से। मैं उम्मीद करूँगा कि तमाम चीज़ों के बारे में असातिज़ा की गाइडेंस देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह